हाँ गुड इवनिंग। अच्छा वो डाउट के लिए तो फोन ऑन करना पड़ेगा ना, क्योंकि डाउट कैसे बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, डाउट पहले ना कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं। और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ मतलब जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहा था मैं अभी, जो आपने सुपरओवेट और ये सब लेकर के कई बारी मतलब ऐसा मैंने देखा कि वो क्यूबिक इक्वेशन ना सोल्व नहीं हो रही होती। जैसे मतलब ऐसे आप सामने से वेक्टर नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो जो एडवांस वगैरह कुछ मेथड हो से क्यूबिक इक्वेशन का आपको पता होगा नहीं, तो जो होते हैं लंबे से थोड़े वो सब मतलब सीख ले थोड़ा बहुत जैसे प्रैक्टिस के लिए कि कई बार मतलब काम आ जाए। बस यही पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछो आप, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज नहीं होगा कल होगा, पर सॉल्व जरूर होगा। ये क्वेश्चन पूछो। एक ऐसा है कुछ तो जैम का एक क्वेश्चन है जो मतलब हर बार ना मैं बनाता हूँ कुछ महीने बाद ना, हाँ तरीका भूल सा जाता हूँ कि वो वेक्टर कैसे ले लेते हैं। हाँ कुछ तो ऐसा स्पेसिफिक सा आ जाता है ना, वो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो जरूर पूछो। ये नहीं कि इकट्ठा, मतलब कहना मतलब ये है कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। आपने पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ, पहले वो पूछो आप, वो क्लियर हो गया फिर बाद के सारे हो जाएंगे, ऐसे वाला है। तो पहले आप पहला वो क्वेश्चन पूछो जो आपसे नहीं हुआ, जो आप कह रहे हो। बताओ क्या है वो क्वेश्चन। ये है हाँ सर। सर एक वो एडजॉइंट का एक क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें वो आइगन वैल्यू पूछता है। मतलब वो a to a इनवर्स का जो मेथड सब लोग बोल रहे थे उससे तो वो बनता है आराम से, पर मैं सोच रहा था कि एडजॉइंट के आइगन वैल्यूज निकाल लेता हूँ। और फिर वो जो रूल होता है ना कि a अगर हमें एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज चाहिए तो डिटरमिनेंट a ओवर a की आइगन वैल्यूज लिख देते हैं। तो उसमें बस उल्टा था कि a की चाहिए थी, एडजॉइंट था, पर वो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही थी। Okay, let me solve first doubt of I think Sitaraman, right? Okay, Sitaraman. So the question you sent is, yeah. So see this question 47. ये कह रहे हैं x be a random variable having MGF. So mxt you have e raised to power t minus 1 upon t time 1 minus t. Okay. So e raised to power t minus 1 upon t time 1 minus t. This is your MGF. And the question they asked is probability x is more than 1. Fine. So the problem is like you could not identify this distribution, right? Because this is not a standard directly. I identified, but after that. So which distribution is this? Tell me distribution of x. सर दो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है वो। हाँ. So you have to write it like 1 upon 1 minus t and e raised to power t minus 1 upon t. Now you can identify this and this separately. 1 upon 1 minus beta t, ये lambda t, e raised to power t minus 1 upon t. So this is uniform 0 1. So here let me write it like my, या मैं क्या लिखूं, x1 x2 कर देता हूं, mx1t mx2t. So from here what is the distribution of x1 and what is the distribution of x2? Uniform 0 1 and ठीक. So यहां से क्या होगा, जो x है that is x1 plus x2 वो यहां से मिल रहा है. This is from this equation. So they are telling this as well as and x1 and x2 are independent. Okay, so x1 and x2 are independent. So x is x1 plus x2 and x1 and x2 are independent. ठीक है. So x1 x is x1 plus x2 and this. So you got this. Now you think, अच्छा तो यहाँ से क्या हो गया, एक एक्सपोनेंशियल एक यूनिफॉर्म है. So the probability x1 plus x2 is more than 1. So you may write 1 minus x1 plus x2 less than equal to 1, isn't it? Now if you have two random variable, they are independent, so you can write the joint PDF, right? Joint PDF of x1 x2. So 1 minus, how will you find the probability of this event? Yes Sitaraman, do you have idea?
how to find probability of this event? This is an event, na? So how to find the probability? You can tell yes or no. You have idea or not? No, sir. No, sir. Okay. So, okay, first let me write a joint PDF. So these two are independent random variable. These two are independent. So you already know joint PDF is equal to product of marginal PDF, right? So the product joint PDF is equal to product of marginal PDFs. So you already know exponential 1 e raised to power minus x1, uniform, it is just 1. So at the end e raised to power minus x1 when x1 is more than 0 and x2 is between 0 and 1. Fine. So now how to find the probability of this region? So this you have to locate in the sample space. So see, what is a sample space? This is a sample space. Support of random variables. Sample space here mean support of the random variables. So this is your sample space. So let me draw this. So x1 is more than 0. So let me write it x1 and x2 is between 0 and 1. So this is 1, this is 0. So this is your reason, I think. है ना भाई, बाकी लोग बताओ. x1 तो 0 से infinity है ना. So x1 तो 0 से infinity एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट एंड x2 0 से 1 है, x2 0 से 1 है. तो ठीक, x2 is 0 to 1. करेक्ट है भाई, ये सपोर्ट है पूरा. हमें क्या चाहिए? What do we need? We need, this is your, no, this is your event E. Event is a subset of sample space. So you have to locate this region on the, so if you draw the graph, so here is 1, so this is x1 plus x2 is equal to 1. So now you have to draw the region. So which region? So this is the region. So this is the region. x1 plus x2 is less than equal to 1. Got it? So this was your sample space, this is your event. So how will you find the probability of an event? So since joint is given, तो आप joint e की power minus x1 times, so मुझे क्या लेना सही रहेगा लिमिट? कैसे कैसे लेता हूँ? y पहले, x2 लेते हैं पहले, ठीक है ना? So this reason is x1 plus x2 is equal to 1. So बताओ भाई क्या करूँ? x2 x1 x1 x2, no problem, ना कैसे भी ले लो. So but ठीक है. तो आप लोग बताओ क्या सही रहेगा, ये देख के डिसाइड करना है. dx1 dx2 लिखूं या dx2 dx1 लिखूं? dx2 dx2. dx2 dx1. कैसे भी कर लो, मतलब तुम देख लेना किससे इजी इंटीग्रेशन है, वो बस तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा. सो x2 अगर हम लिखेंगे तो पहले मुझे x2 की लिमिट चाहिए. सो x2 इज 0 टू, यहाँ से x2 आ जाएगी 1 माइनस x1, ठीक है. तो ठीक है ना, तो x2 इज 0 टू 1 माइनस x1 एंड x1 इज, ग्राफ में देख के बताओ. सो अगर ये स्ट्रिप बनाए तो ये कितनी मूव करेगी? यहीं तक ना, कैसे ही बना लो. 0 to 1. Now, so Sitaraman, this is your doubt. So can you solve this integration? Yes, sir. So you try this. So you simplify this integration and then you will get the answer. Now if you have doubt, you ask. Somewhere you doubt. So this is a concept of, the concept I used is m of x1 plus x2t is equal to mx1t into mx2t. When x1 and x2 are independent. Even this, huh?
सो मैंने फिट कर दिया उस पर। ठीक है, आई थिंक हो गया डाउट। किसका डाउट रहेगा? शुभांकर। सर जो आपने सब पीडीएफ भेजी थी उसमें से बता दिया सर। हाँ वही ओपन कर रहे हैं, आज उसी का डिस्कशन है। सो आज जो लीनियर, हाँ 1 by 1 करते हैं। सो आज लीनियर अलजेब्रा जो जैम या गेट, मैंने कल भेजा था रात को आपको असाइनमेंट्स, तो आपने ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, वो वाले भी हैं जो अलग से मैथमेटिक्स वाला है, उसमें बहुत होगा, 6 अलग अलग सेक्शन है उसमें। तो वो भी आप ट्राई करो पहले, क्योंकि टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करने में। अचानक एक दिन में नहीं होगा सब कुछ, स्लो स्लो करके, है ना। कहते हैं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। कब? अगर आप स्लो स्लो ट्राई कर रहे हो तो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा अगर आप ट्राई कर रहे हो कंसिस्टेंटली तब। तो ठीक है, जैम एमएस खोलें। सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। चलिए 7 आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, तो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन आते थे, ठीक है ना। सो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब ये उस टाइम था, मतलब ना जैम में सिलेबस रिवाइज होते रहे हैं, क्योंकि हर साल ना ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से ऐड सबट्रैक्ट करते रहते हैं टॉपिक्स। हालांकि 22-23 में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ यस यस, रॉन्स्कियन है ये, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, या लीनियर अलजेब्रा में भी इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना। तो ये रॉन्स्कियन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एक्चुअली जो पहले जैम में आया था, अब नहीं है, तो इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट बताओ। चलिएगा 8 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बाहर हो गया सिलेबस से। तो इस साल समझ ही नहीं आता सर। सर ये बेसिस इसका कैसे निकालना है, स्पैन कैसे निकालना है, डायमेंशन क्या है सर? इसमें आपसे क्या पूछा है? देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं। देखो मैं इसमें कहा था, जब क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो आपके सामने सिलेबस होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस रिवाइज होते रहे ना। तो अभी का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं जैम एमएस में। तो आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको देखना है कि सिलेबस में है कि नहीं है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। पहले जब था तब आया था, इस साल नहीं है सिलेबस में। तो क्योंकि इस साल ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट अलग है ना। इस साल कौन करा? मद्रास करा ना? कौन करा? मद्रास, हाँ इस साल। तो ऐसे है ना, पिछले साल उनकी कराए थे, उससे पहले IISc कराया था। तो ऐसे ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं, तो कई बार रिवाइज कर देते हैं सिलेबस। लेकिन इस बार सिलेबस वही है, 2022, 23, 24 तीनों का सिलेबस चेंज नहीं किया उन्होंने। पैटर्न भी 2022 से पहले तुम पेपर देखोगे तो वहाँ 40 मार्क्स के मैथ्स आते थे 2021 में, और 60 मार्क्स के स्टैट्स आते थे 2021 में। 2020 में 15 से लेके 21 तक 60-40 का रेशियो रहा है मैथ स्टैट्स का, मतलब स्टैट्स और मैथ्स का। 60 स्टैट्स 40। फिर 22, 23, 24, 2022, 2023, 2024 ये अभी आपके एग्जाम में भी 70-30 का रेशियो, स्टैट्स और मैथ्स का रेशियो 70-30 का है। तो ये नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट बताओ। ये भी नहीं है तुम्हारे। 13 ट्राई करते हैं। चलिए, हाँ तो ये मैंने कराए थे आपको कि नल स्पेस क्या है। जैसे मान लो तब होता है क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा आपको, तो मैं फिर से डेफिनेशन बता दूंगा, फिर कैसे करना है वो भी समझ आ जाएगा आपको। चलिए ट्राई करते हैं। तो है ना, तो एक जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया नल स्पेस का, तो अगली बार आपको कोई भी क्वेश्चन नल स्पेस का आएगा तो आप ट्राई कर पाओगे, है ना। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। आइए क्या कह रहा है ये कि
ठीक है ना। ये कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3x4, तो मेरे पास एक 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक। सो 3x4 की मैट्रिक्स है, कह रहा है फाइंड द बेसिस ऑफ द नल स्पेस। तो पहले तो मुझे कोई नल स्पेस की डेफिनेशन बताओ। क्लास में हमने एक बार डिस्कस किया है इसको। नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का डेफिनेशन क्या है? ए या एक्स? नहीं, यहाँ पे क्या एक्स, वो सारे एक्स जिसके लिए ए एक्स 0 हो जाए, इसे आप ले रहे हो, हाँ तो है ना। उसके ऊपर ट्रांसफर से लगेगा, मतलब मैट्रिक्स हाँ। लगेगा उसके ऊपर। सो ए का ऑर्डर कितना है? ए मेरा है 3x4। सो आपको क्या लगता है एक्स क्या होना चाहिए डिफाइंड रहने के लिए? एक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये एक्स मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ए एक्स लिख रहा हूं मैं। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स एक्स की, क्या लिखूं मैं? ये वेक्टर है तो पहले तो कॉलम एक ही रहेगा, कितने रो लूं? 4+1। ठीक है ना, हाँ 4+1, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव कब रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया। तो आप देखोगे बुक में ऐसा लिखा रहेगा, दिस बिलोंग्स टू R4, x belongs to R4 such that ax is 0. This is the definition of null space, ठीक। and null space is a vector space, or I can say it is a subspace of R4. It is a subspace of R4. R4 is a vector space itself. ये जो R4 लिखा हूं मैं, R4 is a vector space. So this null space is a vector space. प्रूफ करना है तो 3 कंडीशन है। 0 वेक्टर होना चाहिए, कोई एक वेक्टर चूज करो इस सेट में से, उसका कोई भी मल्टीपल ले लो, अल्फा टाइम एक्स उसमें होगा। यू टेक x1 x2 2 वेक्टर्स फ्रॉम दिस सेट, उसका सम भी इसमें होगा। सो मींस दिस इज अ सबस्पेस। ये रिजल्ट है, कई बार ऑप्शन में आ जाए, डायरेक्टली यू कैन राइट नल स्पेस इज अ सबस्पेस। सो है ना, यहाँ अगर मैं इसके लिए थ्योरम लिखूं तो जो नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज, मान लो ए का ऑर्डर है तुम्हारा m क्रॉस n, मान लो ना m क्रॉस n is a subspace of Rn। तो ये थ्योरम हो गया कि ये सबस्पेस है Rn का, नल स्पेस एक सबस्पेस है Rn का। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या है कि नल स्पेस का बेसिस बताओ, ठीक है। तो तब चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो बेसिस पूछ लिया। बेसिस यूनिक नहीं होता है, देयर आर इनफिनिटली मेनी बेसिस करस्पॉन्डिंग टू वन वेक्टर स्पेस और वन सबस्पेस, इनफिनिटली मेनी बेसिस है ना, तो यूनिक नहीं होता है। तो यहाँ इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तब सब्जेक्टिव था, तुम्हारा आंसर वो पढ़ते थे, तुमने कोई भी एक बेसिस निकाले हैं तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनफिनिटली मेनी बेसिस है तो यूनिक तो है नहीं। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल्स, मतलब MCQ MSQ NAT, तो वहाँ बेसिस ना पूछ के आपको बेसिस का डायमेंशन पूछ लेगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है ना, तो हम बेसिस कैलकुलेट कर लेते हैं समझने के लिए। आइए, सो यहां पे क्या है कि देखो, सो 1 2 3 6 2 6 9 18 1 2 6 12 x1 x2 x3 x4 दिस इज इक्वल टू 0। अब बताइए आप लोग, तो मैं क्या करूंगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया ना, ax बराबर 0। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, एक्चुअली मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। मुझे इस सिस्टम का ax इक्वल टू 0 एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गई। सो मुझे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं ना सॉल्व करना, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाओ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो पहले आप इसको आप अलग से चाहो तो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैं देखो अलग से कर देता हूँ। सो तो क्या होगा, 1 2 3 6 2 6 9 18 1 2 6 12 फाइन। करो तुम लोग, मेहनत करो थोड़ा इस पे, इसको रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लाओ। क्या करोगे, ये जो 1 है ना, इन दोनों को 0 बना देगा। फिर यहाँ 1 बनाओ 6 की जगह, ये 1 उन दोनों को 0 बना देगा। फिर यहाँ 1 बनाओ 6 की जगह वो 0 बना देगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करो, या मैं करूँ,
तो आप लोग जरा ट्राई करके बताओ, इसमें रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, मतलब कोशिश करो इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना लो, मैं ये कह रहा हूँ, बना के बताओ मुझे क्या आएगा। कर लिया तुमने? हाँ अरे उसको भी 0 बनाओ, इसके नीचे वाले को 0 बनाओ, और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई, 2-3 स्टेप और लगाओ, मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बना दो, फिर बताओ क्या आएगा। सर ऊपर वाली सारी 0 हो जाएंगी, फिर 0206 और 0036। अच्छा यहाँ भी दिक्कत ये है कि सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन कॉमन आएगा। मतलब यहाँ पे जैसे अब किन लोगों ने किसको 0 बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो मतलब रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म अलग अलग आएगा, मतलब इकोलॉन फॉर्म अलग अलग आएगा, लेकिन जो फाइनल रिड्यूस फॉर्म आएगा वो सेम ही आएगा। बताओ क्या लिखूं चलो मैं कर ही देता हूँ, तुम लोग मैच करना। देखो तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का 2 टाइम करके हटा देता हूँ, तो 2 3 और उसमें से घटा दो 6, फिर थर्ड रो को घटा दो ऐसे ही 0 0, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैं लिख देता हूँ कर क्या रहा हूँ, मैंने अप्लाई R2 चेंजेस एज R2 माइनस 2R1 और मैंने लगाया R3 चेंजेस एज R3 माइनस R1, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया। इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बोलते हैं, जो लिख रहा हूँ ना कि दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस, नॉट, क्या मैं गलती है उसमें बोला था, एक वर्ड लिख दिया था ना, क्या सिमिलर नहीं, ये सिमिलर नहीं होगा, दे आर इक्विवेलेंट। सिमिलर मैट्रिसेस आर डिफरेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर डिफरेंट। तो अभी जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, these are called equivalent matrices। अगर कोई वर्ड आएगा what is equivalent matrix, so matrix obtained by applying elementary operation of this type, और elementary operation 3 होते हैं ना, वो अप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा, so that are equivalent matrices। और similar matrix क्या था कि A is similar to B if and only if there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to B, तब बोलेंगे A and B are similar। ये equivalent matrices हैं। ओके सो सिंप्लीफाई कर लो और इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड रो में फर्स्ट रो हटा रहा हूँ, सो यहाँ 6 आ गया। अब देखो थोड़ा सा और मेहनत करो, तो मेहनत ये करना है कि फर्स्ट रो में से अब सेकेंड रो को घटा दो, तो 1 0 0 0 और सेकेंड रो में थर्ड रो घटा दो, तो 0 2 0 0 0 0 3 6। चेक कर लो, कहीं डाउट हो तो बताना मुझे। तो मैं सीधा अब यहाँ पे आ जाता हूँ, तो जो सिमिलर मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है ना राइट में, तो वो ऑपरेशन राइट में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x1 x2 x3 x4, हो सकता है तुम्हारे पास कोई और टेक्निक हो, वो भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा टेक्निक मैं कह रहा हूँ, हर इंसान का अलग अलग अप्रोच होता है, तो डिपेंड करता है सीखा कैसे है, तो हो सकता है तुम्हारे पास बेटर अप्रोच हो, नो प्रॉब्लम, आप उससे सॉल्व करो। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कि 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6। अब इससे देखो इक्वेशन क्या बन के आएगी, तो पहली इक्वेशन आई x1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आई 2x2 इज 0, तीसरी इक्वेशन आएगी, तो चेक कर लेना कैलकुलेशन। सो यहाँ मैंने क्या यूज किया, यहाँ मैंने R2 को चेंज किया है, R2 माइनस R1, R3 को चेंज किया R3 माइनस R2, नहीं R1 को चेंज किया है, R1 को चेंज किया है R1 माइनस R2, ठीक है ना, ये नहीं किया, R3 को चेंज किया। सो
चलिए तो देखिए क्या बना, 3x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 0। तो x1 x2 0 ही आ गया यहाँ से, x1 इज 0, x2 इज 0 और यहाँ से x3 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा भाई, x3 इज इक्वल टू बोलो -2x4। अब याद करो क्या लिखा था मैं, नल स्पेस इज सेट ऑफ x सच दैट ax इज 0। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने ये लिखा था, अब मैं आता हूँ नल स्पेस पे। सो नल स्पेस ऑफ A, सो मुझे x1 x2 x3 x4 लिखना है। तो x1 तो मेरा आ गया 0, x2 आ गया 0, यही मेरा x है ना, ax बराबर 0 के मैंने x यही है, तो सेट ऑफ x सच दैट ax इज 0। सो ax2 0, x3 की वैल्यू डिपेंड करे x4 पे। तो चलो अभी -2x4 x4, जहां x4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताओ इसमें कितने अननोन क्वांटिटी है, कितने फ्री वेरिएबल है यहाँ पे, 1। सो दैट इज डायमेंशन। तो पूछता डायमेंशन क्या है नल स्पेस का, 1। आपसे पूछा क्या है, नल स्पेस क्या है, यही आंसर है, नल स्पेस। किसी को डाउट है, देख लो। थोड़ा और लिखोगे तो बुक में हो सकता है ऐसा लिखा हो इसको, तो बुक में क्या करेगा, इसी चीज को मतलब x4 बाहर निकाल देगा। तो 0 0 -2, 1 x4 बाहर रहेगा, है ना। तो ये आंसर है, 1 फ्री वेरिएबल तो डायमेंशन 1, तो इसकी डायमेंशन 1 है, क्योंकि एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इस सेट में है। भाई शुभांकर क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपसे एग्जाम में डायमेंशन पूछेगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा नल स्पेस निकाल के दिखाओ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अब ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था जब सब्जेक्टिव आता था एग्जाम में, तो अभी आपसे पूछेगा डायमेंशन, डायमेंशन इसका 1 है। ओके, अच्छा इसी को नलिटी बोलते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे मैं आगे पूछ लूं अगर, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, तो इसको मैं, अच्छा सॉरी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का नाम क्या है, नलिटी ना। तो मैंने यहाँ नलिटी निकाला एक्चुअली, है ना। सो जैसे देखो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स की नलिटी फाइंड की है, नलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक A कितना आएगा नलिटी को यूज करके बताओ, नल स्पेस को यूज करके, नलिटी को यूज करके बताओ, है ना। तो आपने पढ़ा था रैंक मैट्रिक्स प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन। डायमेंशन मैट्रिक्स मतलब कॉलम्स, 4 कॉलम है ना, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स के डायमेंशन का मतलब कॉलम्स, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, तो रैंक 3 होगा। अब चेक कर सकते, अलग से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, इसका रैंक 3 आएगा। वो यहाँ से दिख भी रहा है ना, वैसे दिख रहा है, मैं वेरीफाई करने के लिए पूछा। सो अच्छा, तो मैं यहाँ से भी बता सकता था, ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ओ एक मिनट, तो एक शॉर्ट अप्रोच यही तो था, मतलब ये करने की जरूरत थी क्या, क्योंकि नल स्पेस निकालना था इसलिए मैंने निकाला। अगर मुझे सिर्फ नलिटी चाहिए होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नल स्पेस चाहिए तो मुझे ये करना पड़ा। अदरवाइज यहाँ से आपको रैंक दिख गया 3 है, और रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम 4, तो नल स्पेस 1 आ जाएगी, बिकॉज रैंक यहाँ से मुझे 3 दिख रही है। सो रैंक 3 है, तो नल, अगर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस पूछेगा दैट इज 1, तो यहीं से आ जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, ये स्पेस निकाला क्योंकि स्पेस पूछा था। ओके नेक्स्ट 29। ओके, तो हाँ 16, अच्छा ठीक है, 16 पे 29 ना। चलो 16, P बराबर x इंटू एक्स ट्रांसपोज अपॉन एक्स ट्रांसपोज x, B एंड हाँ पता तुम्हें, जो डिनोमिनेटर है वो नंबर है, तुम्हें पता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, एक बार ध्यान दो, कि मैट्रिक्स का डिवीजन थोड़ी होता है, देखो ध्यान से। तो जैसे तुम्हारा x क्या है, x तो तुम्हारा ये होता है ना, x1 x2 xn वेक्टर है x। मैं तुमसे पूछूं x ट्रांसपोज x क्या होगा, तो ये हो गया x1 x2 xn और x1 x2 xn, किसके इक्वल आएगा ये,
ठीक है। सो दिस इज अ नंबर, मैं बोलना चाह रहा हूँ दिस इज अ नंबर, ये कोई नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन तो होता ही नहीं ना, तो मतलब ये तो बस ये समझ आया तुम्हें यहाँ से कि ये जो, अच्छा क्वेश्चन नहीं बोला है, तो x ट्रांसपोज x तुम्हारा एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कह रहे हो कैसे करेंगे, p इंटू पी ट्रांसपोज निकाल लो, निकाल सकते हो, नहीं तो तुम्हें इतना क्यों मेहनत करना है। हाँ तुम्हें इसमें इतना मेहनत करने की जरूरत है, तुम ये सोचो P तुम्हें दे दिया, ओके n क्रॉस n मैट्रिक्स है, क्योंकि न्यूमरेटर का रैंक n इंटू n है ना, मैं अभी कर ही रहा था, देखो यहाँ पे। सो हमने अभी x ट्रांसपोज x निकाला मैंने, अगर मैं x ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये क्या आएगा बताओ, x ट्रांसपोज, तो x तो तुम्हारा ये है x1 से लेके xn तक, और x ट्रांसपोज क्या है x1 x2 xn तक, तो ये तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी ना, आपको दिख भी रहा होगा। सो इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे है x1 स्क्वायर है ना, यहाँ x2 स्क्वायर होगा, तो डायगोनल पे तो ऐसा रहेगा, और यहाँ x1 x2, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो x एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, तो देखो ये कहना चाह रहा है x कोई भी नॉन जीरो कॉलम वेक्टर दो, तो एग्जाम में जनरल प्रूफ करने से बचो, मतलब टाइम बचेगा, मतलब ये है। तो ये तुम्हारे पास x ट्रांसपोज x है, x नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, ठीक, x क्या है, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, तो तुम एक अपनी मर्जी से कोई नॉन जीरो कॉलम वेक्टर अज्यूम कर लो, n तुम अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड कर लो, 2 या 3 जो तुम्हें फेवरेट हो तुम्हारा, उसके हिसाब से n चूज कर लो, उसके हिसाब से एक नॉन जीरो वेक्टर चूज कर लो, तो p निकाल पाओगे यहाँ से, हाँ या ना। हाँ ये और एक थ्योरम है इसमें, आई थिंक डी ट्रू होगा, ये रिजल्ट मुझे याद आ गया, तो ये आई थिंक इसमें रैंक ऑफ p इज 1, क्या आंसर है इसका, है ना, यही है, डी होगा आई थिंक। तो तुम एक एग्जाम्पल बनाओ, और एग्जाम्पल से बाकी 3 आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, नहीं होगा तो नया एग्जाम्पल बनाओ, मतलब एंट्रेंस अप्रोच बता रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव होगा तो फिर तो वो करना पड़ा तुम्हें। एंट्रेंस में क्या करना है, तुम अपने तरीके से एक फेवरेट अपना x चूज कर लो, मान लो मैंने x0 ले लिया, 10 ले लिया, अब बाकी काम करो, यहाँ से p निकालो, p क्या था, x ट्रांसपोज अपॉन x ट्रांसपोज x, निकाल लोगे, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। अब एक p यहाँ मिला, अब इस p के लिए मैं ऑप्शंस चेक कर लूंगा, तो 1-2 तो आउट हो ही जाएगा इस एग्जांपल से, नहीं आउट हो तो नया बना लो, एक नया x ले लो, 1 1 1 ले लो, मान लो अपनी मर्जी से, इसके लिए तुम p निकाल लो, तो ये तुम्हारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो इससे एग्जाम्पल ऑप्शन को डिस्कार्ड करेगा, एग्जाम्पल फॉल्स करेगा, ऑप्शन को ट्रू नहीं करेगा, ठीक है ना, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, वो कुछ को आउट कर देगा, तो एंड में एक ही बचेगा। और ये रैंक 1 ही आ रही है, हाँ ये थ्योरम है, तो रैंक 1 ही होगी, मैं लिख देता हूँ ऐसे। सो ये रिजल्ट है, मतलब कई बार है ना पढ़ाते हुए इतना, हालांकि लिनियर यहाँ पे मैंने फास्ट पढ़ाए बहुत जल्दी में खत्म कर दिया समाओ, क्योंकि मेरा दिमाग में था एक से पहले हटाना है, खत्म करना है, इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन अगले बैच में मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। तो इसमें था क्या ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरम है कि इफ x आपका जो है x1 x2 xn n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, जो नॉन जीरो है ना, क्योंकि नॉन जीरो है, सो xi इज नॉट जीरो फॉर सम i, ठीक है ना, फॉर सम i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा बोल दो, कुछ i के लिए, या i फ्रॉम 1 to n, ऐसा बोल दो, फॉर सम i, कुछ i के लिए xi नॉन जीरो है, देन जो x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स आएगा, x ट्रांसपोज x तो नंबर आ जाएगा, x ट्रांसपोज जो है, this is a n cross n matrix, this is an n cross n matrix having rank 1। अब जैसे रिजल्ट याद, फायदा ये होता है कि तुम्हें टाइम बच गया और ज्यादा, कि तुम्हें याद ही है तो ऐसे टिक कर लोगे, नहीं तो जैसे एग्जांपल बनाए उससे करेंगे, तो इस तरह से। सो ये हमारे पास है, सो इस तरह केस में x ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक 1 ही होगी, चेक करके देख लो, तुम कुछ एग्जांपल बना के ट्राई कर लो।
नेक्स्ट, और रैंक लाने के लिए आपको मैथ पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे आप गेट के स्टूडेंट हो, जैम के स्टूडेंट हो, क्योंकि वो आंसर शीट में ये नहीं देखा जाता कि आपने स्टैट्स में कितना एवरेज 30 मार्क खानो आप, आपको ये देखा जा रहा है टोटल में कितने मार्क्स ला रहे हो जी। 19 से 19। हाँ 19, अरे 19 पूछोगे तुम, ये तो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। सर मेरा 0 0 आ रहा था। आइगन वेक्टर का डेफिनेशन वो 0 0 हो ही नहीं सकता। आइगन वेक्टर का डेफिनेशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। डेफिनेशन है नॉन जीरो होगा, तो आइगन वेक्टर 0 हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि डेफिनेशन है उसका। चलो देखते हैं ट्राई करके, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, सीखना ही तो है। तो तुम एक काम काहे नहीं करते, कई सारे अप्रोचेस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, सो मान लो मैट्रिक्स ए है मेरा 1801, तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा, देख के पता चल रहा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, चाहे डायगोनल, इन तीनों केस में आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये फिर से थ्योरम है कि इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे तुम्हें अलग से वो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो 1 1 आएगा। ठीक, अब आइगन वेक्टर क्या होता है, देयर एग्जिस्ट x which is non-zero such that ax is equal to lambda x। ये डेफिनेशन है आइगन वेक्टर का। ठीक है, कि एक ऐसा नॉन जीरो x मिलना चाहिए ताकि ax बराबर लैम्डा x हो जाए। इसी को फर्दर लिखोगे, सो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई टाइम x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो a माइनस लैम्डा आई टाइम x बराबर 0। a माइनस लैम्डा आई लिख लें, लैम्डा तो 1 है, तो लैम्डा तो यहाँ 1 है ना, तो a माइनस तो घटा लो, a में से घटाओगे तो क्या बचेगा, लैम्डा आई है ना, तो आप सबको समझ आ ही रहा होगा, आई है मेरा, इसको घटा लो, इसको है ना, 0 8 0 0 बचेगा, और x है आपका x1 x2, दिस इज 0। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, 8 x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x2 बराबर 0। तो मैंने x वेक्टर क्या लिया, ध्यान दो, x वेक्टर ये लिया मैंने, तो मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, x मैंने लिया था x1 x2, और ये कह रहा है कि x2 0 रख दो, तो x1 0। अब बताओ तुम्हें 0 0 कैसे दिख रहा है। अब x1 कोई भी नंबर चूज करेंगे तो वो एक्चुअली तुम x1 कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ चूज कर सकते हो। तो ऑप्शन देख लो, क्या चूज करना चाहोगे x1 को, ताकि ऑप्शन मैच कर जाए। सर भी वही दिख गया था सर। ठीक है ना, एक तो ये अप्रोच हुआ जो लेंदी हुआ, शॉर्टकट अप्रोच बताएं। हाँ इस कर समझ आया कि नहीं, यस सर। हाँ x1 यहाँ कोई रियल नंबर हो सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, तो आपको देखना ऑप्शन मैच कराने हैं, तो आइगन वेक्टर इसी फॉर्म का होगा हमेशा, x1 0 टाइप का। मैंने ऐसे लिखा है, जिन्होंने कॉलम में लिखा है, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्म लिखा है, तो आप देखो x1 क्या चूज करोगे, तो 5 चूज करोगे तो ऑप्शन मैच करेगा। यू कैन चूज एनी x1, कुछ भी ले सकते हो, और वो सब डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं एक्चुअली, उसमें एक ही इंडिपेंडेंट है, मतलब एक इंडिपेंडेंट है, बाकी तो मल्टीपल ही है ना उसके। तो इस तरीके से दूसरा अप्रोच क्या था, इजी अप्रोच, कि हर ऑप्शन के साथ तुम काम करो। मान लो ये x है फॉर एग्जांपल, हर ऑप्शन x है, तो सब में a को x से मल्टीप्लाई करो, a मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा है, इसका मतलब ये है, ट्रांसपोज लगा रखा है ना, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आप ax फाइंड करो, है ना, a टाइम x फाइंड करो सब हर ऑप्शन में, और देखो कौन सा x का मल्टीपल आ जाता है। तो ax बराबर अगर लैम्डा x आ गया तो इस केस में क्या बोलते हैं, लैम्डा इज आइगन वैल्यू और x इज आइगन वेक्टर। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करो, a मैट्रिक्स को हर ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, आसान है मल्टीप्लिकेशन, और देखो x का मल्टीपल कौन सा आएगा, बस ये देख लेना है। तो एक ही में ऐसा होगा कि मल्टीपल x का आएगा। x क्या है आपका, तो a मेरा 2 × 2 का है, और x है मेरा x1 x2। अब देख लो समथिंग टाइम x1 x2 आ जाएगा यहाँ लैम्डा टाइम,
तो वो जो समथिंग आएगा लैम्डा दैट इज आइगन वैल्यू, और वो जो वेक्टर है तो हर ऑप्शन में देखो वो कौन सा x1 x2 कौन सी हो सकती है, तो उससे देख लो। चलो अच्छा ट्राई करके आए हो, है ना। नेक्स्ट हाँ, तो 20 हो गया, 23 था ना उनका सुमित का आई थिंक, सो 29 से 29 9। अच्छा उससे पहले 29 से पहले कोई क्वेश्चन है? 29 से पहले किसी डाउट नहीं है? ओके ये फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है तो आप इसको छोड़ दो, अभी सिलेबस में नहीं है। हाँ अभी जो कि मैं जैम के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, जो भी चीजें बोल रहा हूँ जैम के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, गेट का अलग से अभी प्लान करेंगे, है ना। नहीं सर एक चीज बोलना था इसमें जी तो ये तो जैम का ना जैसे गेट में आता है में हाँ जैसे हम कर ये में R3 टू R3 यस ठीक है R3 टू R3 दिया सर हमने इसमें। हाँ कभी कभी सर उसमें चेंज हो जाता है ना, मतलब R2 टू R3 दिया जाता है। क्या बोल रहा है, इन द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 to Tx बराबर x विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस। मेरे कहने का मतलब सर जो रियल है ना वो चेंज की जाती है, मतलब 2 to 3 लिया जाता है या 3 to 2 लिया जाता है, उसमें मेथोडोलॉजी डिफरेंट की जाती है सर। वैसे ये 3 to 3 है, मतलब जितना वहाँ पे हमें जहाँ से जाना है रियल के लिए, रियल टू रियल हमें 3 दी हुई है। 3 क्रॉस 3 मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये वो क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर Tx क्या है। सो आपसे मैं पूछूं अगर T ऑफ ये फर्स्ट एलिमेंट 1 0 0 फिर क्या होगा, T ऑफ 1 0 0। मैं यहाँ पे x की जगह आपको एक बार x1 रखना है, एक बार x2 एक बार x3, 3 वेक्टर है, तो आप ये है 1 0 0 T मैट्रिक्स देखो ध्यान से 1 0 0 1 1 0 1 1 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1 0 0 के साथ, बताइए क्या आएगा। सर 1 1 1 आ रही है। ठीक है 1 1 1 आ गई, फिर उसके बाद ऐसे ही T आप दूसरा निकालो 1 1 0 निकालो, सेम तरीके से 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करो आप, तो मैट्रिक्स क्या था आपका 1 0 0 1 1 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो आप 1 1 2 1 2 2 सर 1 वहाँ ठीक। तीसरा T ऑफ 1 1 1 निकालो आप, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 1 1 के साथ, बताइए क्या आएगा। सर 1 2 3 ठीक है आपने फाइंड किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका नोटेशन होता है T ओवर बीटा, मैट्रिक्स करस्पॉन्ड ये बीटा मैं इसको बोल रहा हूँ B है ना, सो T ओवर B ये चाहिए मुझे। सो अब आपको क्या करना है, इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब यू हैव टू राइट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो क्या लिख सकते हैं आप। सर इसको कॉलम वाइज लिखना है कि मतलब रो वाइज लिखना पड़ेगा। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ इसको आपको ऐसा लिखना है C1 टाइम x1 C2 टाइम x2 C3 टाइम x3, ये है आपका x1 x2 x3 x1 x2 x3, x1 is this column vector, x2 this column vector, x3 this column vector, तो ऐसा लिखना है। बताइए आप C1 C2 C3 क्या लेंगे। सर 1 1 1 ही आएगा। नहीं ऐसे कैसे आ जाएगा, ध्यान दो अब उतना कैलकुलेशन नहीं करना। देखो ये 1 1 1 ये तीसरे वाले के इक्वल है ना, तो आप C1 को 0 रखो, C2 को 0 रखो, C3 को 1 रखो, इक्वल होगा कि नहीं चेक करो। C1 को 0 C2 को 0 C3 को 1 रखो, आप आएगा। सर C1 कितना मतलब 0 C1 इज इक्वल टू 0 C2 इज इक्वल टू 0 C3 इज इक्वल टू 1, हाँ सर आ गया। तो ये इक्वल आ जाएगा। तो 0 0 1 कोएफिशिएंट को यहाँ लिखते हैं हम लोग, जो वेक्टर के कोएफिशिएंट है ना C1 C2 C3 यहाँ लिखना है। सेम चीज इसके साथ करो। हाँ भाई जो बेसिस होता है उसको रो वाइज लिखता है
और जो और क्या बोलते हैं जो उसका जो कोएफिशिएंट है वो कॉलम वाइज, हाँ ये कोएफिशिएंट जो है कॉलम वाइज आएगा। हाँ तो अब यहाँ पे सेम इसको करो C4x1 C5x2 C6x3। अब C4 C5 C6 क्या लोगे, देखो इसको आपको लिखना है इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। आराम से ट्राई करो आप। 0 1 आएगा सर इसमें 0 1। हाँ वैसा नहीं होगा। 0 1 1 लोगों तो इक्वल कहाँ बनेगा, 0 1 1 इक्वल बनेगा, नहीं बनेगा, ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ तो 1 ही है आपका, तो कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा तो माइनस, हाँ 2 टाइम 1 1 1 कर दो। अब माइनस देखो क्या करना पड़ रहा है मुझे, ये करना पड़ेगा। देखिए आ जाएगा कि नहीं, आ गया। आ जाएगा 2 टाइम 1 1 1 माइनस 1 0 0। सो ये अब ठीक से लिखो इसको वापस, तो ये पहले लिखो आप। तो C4 की वैल्यू आई -1, ठीक। C5 की वैल्यू, C5 को मैंने यूज ही नहीं किया तो 0 है। C6 के जगह पे 2 यूज किया मैंने, ऑप्शन यहीं से दिख गया होगा अभी, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं, ये दिख गया मुझे। तीसरा में ऐसे ही है, इसको भी लिखना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 है, तो फिर से मैं क्या करूंगा 3 टाइम 1 1 1 ले लेते हैं, और क्या बचा जो एक्स्ट्रा है घटाओ उसको आप। सो यहाँ 3 3 3 कर दिया, यहाँ तो 1 2 3 था, आपने 3 3 3 कर दिया, तो एक्स्ट्रा को घटाओ। सो 1 1 0 घटाओ और 1 0 0 घटाओ, ये हो गया, ये आ जाएगा। बाकी लोगों को जो जैम वाले स्टूडेंट है यू कैन इग्नोर, नो प्रॉब्लम, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी थ्योरीज का हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। एक बार जैम का सिलेबस खत्म हो जाए बस, फिर हम लोग गेट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सर इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे हमने R3 to R3 लिया था सर इसमें हमने, हाँ। ऐसे सर क्वेश्चन हो रहा है सर इसमें जब R2 को R3 चला जाए। अरे RM to RN, हाँ बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। RN to RM है, हाँ तो क्या कहना चाह रहे हैं आप। RM लिखा ना सर, हाँ। जैसे कभी-कभार उल्टा भी होता था, RM to RN हो जाता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है मतलब। मतलब वैसे क्वेश्चन भी सर डिस्कस करेंगे सर। हाँ जी, ये डोमेन है, ये रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। हाँ R to R स्क्वायर हो सकता है, R स्क्वायर to R हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आए 3 क्रॉस 3 क्यों बना है मैट्रिक्स। अगर T Rn to Rm है ना, तो जो T बीटा बनता उसका ऑर्डर क्या आता भाई, बेसिस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर बता देता हूँ। जो बाद वाला डायमेंशन है वो पहले आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स M क्रॉस N बनाएगा वो। कई लोग गलती से क्या करते हैं N क्रॉस M बोल देते हैं, M क्रॉस N बनाएगा वो, ठीक है ना। तो M क्रॉस N की मैट्रिक्स बनाएगा वो। यहाँ 3 क्रॉस 3 इसीलिए क्योंकि R3 to R3 था, R2 to R3। हाँ उस तरीके से। तो ऐसे कराएंगे आगे हम। जैम का सिलेबस इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, गेट का सिलेबस आराम से चलता रहेगा आपको। तो जैम गेट वाले बच्चों को जैम वाला चीजें सारी करनी है आपको, जो जैम वाली चीजें वो सब करना है आपको, और फोकस मेनली इसी पे करना है। इतने से ही आपके अच्छे रैंक आ जाएंगे। गेट वाली चीज सिलेबस चलेगी तो गेट की सिलेबस आगे तक जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएगी सिलेबस। तो उसके लिए बाकी आपको जो टेस्ट चल रहा होगा जैम के लिए, वो सारे टेस्ट आपको देते रहना है। तो जैम के लिए जो भी हो रहा है वो सब आपको करना ही है। गेट एक्स्ट्रा है, गेट वाली जो एक्स्ट्रा चीजें वो एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन जैम वाली सारी चीजें गेट वालों को करना ही है। सर जी 46 सर, 46 बता दीजिए सर, 46। अब भाई राजा, हम बोल रहे हैं कि सर गेट सेट दे के आईआईटी खड़गपुर में आपने फिर क्या बताया, डाटा साइंस एंड कोर्स है ना, उसमें जा सकते हैं। तुम पहले एमएससी तो कर लो, बीएससी करके नहीं जा सकते। मतलब 3 इयर्स तक तो वैलिड है सर उसका। एग्जाम देने के लिए वैलिड है, एडमिशन के लिए वैलिड नहीं है एमटेक में। आप गेट एग्जाम देने के लिए वैलिड हो, एलिजिबल हो। एमटेक में एडमिशन के लिए 4 ईयर डिग्री चाहिए, या तो बीटेक के करके आओ या एमएससी करके आओ एमटेक के लिए। सर अच्छा मतलब सर मैं एमटेक पे डेटा साइंस वगैरह के कोर्स है। हाँ खड़गपुर में एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है, वो डेटा साइंस टाइप का ही है। सर सपोज सर मतलब 3
का हॉलिडे मतलब एमएससी कर लिया, जो बीएससी में उसने क्वालिफाई किया, तब एमएससी के बाद डायरेक्ट उसका एडमिशन होगा तो? जी, गेट का वैलिडिटी 3 साल की है, तो तुम इस साल के गेट स्कोर 2025 में भी यूज कर सकते हो, 26 में भी यूज कर सकते हो, मतलब 24 में यूज कर सकते हो, 25 में, 26 में, अगली 3 साल तक यूज कर सकते हो, 3 टाइम यूज कर सकते हो तुम। नेट के स्कोर 2 बार, जेआरएफ का स्कोर आई थिंक 2 साल तक वैलिड है, तो वहाँ 6-6 महीने में पीएचडी के एंट्रेंस होते हैं हर जगह, तो आप 4 बार यूज कर पाओगे 2 साल में, 5 बार। हाँ, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था? 36 सर 46 अरे रुको पहले 1 by 1, 36 के बाद 36 से पहले है तो बताओ, ठीक है। सो इसमें ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, डिफाइन किया है ट्रांसलेशन को, ये है ट्रांसलेशन, उसने अलग कुछ नहीं लिखा, जो लिखा है वो डिफाइन किया है। ट्रांसलेशन का डेफिनेशन यही क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी ऑफ 5x3 मैट्रिक्स है ना, जिसका रैंक कितना है 2 है। ए जो है 5x3 का मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है, ओके। एंड बी जो है, बी एक नॉन जीरो वेक्टर है, दैट इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है। तो कॉलम स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, स्पैन ऑफ कॉलम। स्पैन क्या था? सेट ऑफ ऑल लीनियर। जब कॉलम स्पेस वर्ड यूज कर रहा है तो कॉलम स्पेस की डेफिनेशन है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ अगर पहले से क्लियर नहीं आपको, तो कॉलम स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो इन कॉलम्स है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, स्पैन ऑफ कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड कॉलम स्पेस। तो एस जो हमारे पास है, S is a collection of vectors x in R³ such that Ax is equal to B। तो जो भी S सेट का एलिमेंट होगा वो Ax is equal to B को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक। डिफाइन द ट्रांसलेशन, देखो डिफाइन किया है, ऐसे नहीं बोल रहे, डिफाइन कर रखा है। सो डिफाइन द ट्रांसलेशन ऑफ अ सबस्पेस V ऑफ R³। तो V कोई R³ का सबस्पेस है और उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है बाई एक्स नॉट। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि उस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट में एक्स नॉट ऐड कर दिया, एक्चुअली ये है ना, एक्स नॉट प्लस वी, जहां पे v बिलोंग्स टू v, इस तरीके से। मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देना ही चाहता हूं, मान लो अगर कहां पे 1 2 3 है, तुम 2 से ट्रांसलेशन करो तो इसका क्या मतलब होगा? सॉरी 2 यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी 2 नहीं, मतलब एक्स नॉट कहाँ, एक्स R³ में, एक्स नॉट R³ में, सॉरी। सो 1 1 1 प्लस v, हाँ ये पूछ रहा हूँ। मान लो 1 1 1 से ट्रांसलेशन किया तुमने तो क्या बन जाएगा? ऐड कर दोगे ना, सो 2 3 4, ये मतलब है एक्चुअली। तो ट्रांसलेशन मतलब ये है कि उसके हर एलिमेंट में तुम एक नया वेक्टर ऐड कर रहे हो। एक्स नॉट एक वेक्टर ही है, तो एक्स नॉट R³ का ही एलिमेंट है, ठीक। अब बोल रहा है कि x नॉट प्लस v का डेफिनेशन क्या है? x नॉट प्लस v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। सो जो वेक्टर स्पेस मैंने बोला जैसे v ये है मेरे पास, सो ये v का मेंबर है, तो ये x नॉट प्लस v हो गया, जहां x नॉट मैंने अपनी मर्जी से कंसीडर किया 1 1 1, अपनी मर्जी से कंसीडर किया, सो ये x नॉट है, तो यू आर ट्रांसलेटिंग v बाई x नॉट, सो मींस x नॉट प्लस v। सो v के हर एलिमेंट में, मैं एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ, v के हर एलिमेंट में है ना, यहाँ अगर मान लो ये होता है x1 x2 x3, तो समझ तो आ ही गया होगा। सो x0 प्लस 1, x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, x3 प्लस 1, ऐसा हो गया। सो देन S जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, S में एक ही एलिमेंट है, S ट्रांसलेशन है ऑफ 1 डायमेंशनल सबस्पेस, S इज ट्रांसलेशन ऑफ 2 डायमेंशनल सबस्पेस। सो S के बारे में बात कर रहा था। अब तुम्हें ये ढूंढना है, देखो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि x0 प्लस v जो है, x0 प्लस v, ये जो एलिमेंट्स हैं ये S में कब बिलोंग करेगी बताओ? x0 प्लस v1 प्लस x0 प्लस v2, अरे दोनों का सम इसमें होगा। एक मिनट तुम पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं अगर बोलूं कि कोई वेक्टर
वी एस में है कब? या एक्स, मान लो एक्स कोई एलिमेंट एस में है कब? सर जब वेक्टर स्पेस x इक्वल टू p होगा जब वो हाँ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन नहीं समझते तुम। एस सेट क्या डिफाइंड है? सेट ऑफ दोज एक्स फॉर विच एक्स इज बी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि सो एक्स सेट ऑफ दोज एस इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज बी। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू एस का क्या मतलब है? तो एक्स इज इक्वल टू बी, ये मतलब है। अब ठीक से बताओ, एक्स नॉट प्लस बी बिलोंग्स टू एस का क्या मतलब है? x नॉट प्लस b इक्वल टू b। यस, अब आगे प्रोसीड करो। सो ए एक्स नॉट प्लस ए बी इज इक्वल टू बी। अब x जो तुम्हारे पास एक्स नॉट है वो कहां से आया है? एक मिनट, तो ये बोला था S has an empty set, S has only one element, S is translation of one dimensional subspace, S is translation of a two dimensional subspace। तो जरा समझो, अब तुम्हारे पास ए एक्स नॉट, ए एक्स नॉट किसके इक्वल होगा? बी, है ना? हाँ, एक्स ए एक्स नॉट किसके इक्वल होगा? सो v, तो ये b प्लस ए वी इज इक्वल टू बी। तो ए वी इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब ऑप्शन चेक करो क्या बोलना चाह रहा है। सो ए बी बराबर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? ए क्या था? ए था 5x5 का मैट्रिक्स रैंक 2 का। देखो पहला इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो, A be a 5x3 मैट्रिक्स हैविंग रैंक 2। अब ध्यान दो जरा, A का रैंक 2 है तो A की नलिटी कितनी होगी? 1। सो नलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 बिकॉज, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ V सच दैट AB इज इक्वल टू 0? क्योंकि यही नल स्पेस है, ये इसी को नल स्पेस बोलते हैं हम लोग। एंड नल स्पेस, ठीक है ना, जो नल स्पेस है एक्चुअली वो आपका, उसका डायमेंशन इज 1। तो इसका डायमेंशन 1 होगा, मतलब V जो भी होगा 1 डायमेंशनल सब स्पेस होगा। तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका कि x नॉट प्लस एस बिलोंग करेगा कब? जब ये ऐसा होगा। सो क्या इन्होंने कंक्लूजन दिया V के बारे में? तो कितना ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? ऑप्शन देख के क्या समझ आ रहा है, क्या ट्रू होगा? एक तो है इस वन डायमेंशनल, वो जो आपने बोला वो होगा। सी ऑप्शन सही है इसमें। हाँ, ठीक है ना? तो बोलना चाह रहा है कि ये वाला एलिमेंट S में कब जाएगा, ये पूछना चाह रहा है तुमसे। तो क्या रेस्ट्रिक्शन आएगी V पे? एक्स नॉट प्लस V S में कब बिलोंग करेगा? ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बताओ, कौन सा? 54। अच्छा, सर 46 सर 46। ओके ओके 46। क्या बोल रहा है ये? क्यू ए बी जो है ना,
Q, A, B be matrices of order n क्रॉस n with रियल एंट्रीज। इस तरह से Q जो है ऑर्थोगोनल है और A इन्वर्टिबल है। सो देन आइगन वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज A इनवर्स BQ आर ऑलवेज सेम एज दोज। सो अगर तुम डिटर्मिनेंट लगा देते हो Q इनवर्स A, Q ट्रांसपोज A इनवर्स BQ, तो एक्चुअली हाँ Q ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अच्छा इससे तुम चेक कर लो, मान लो वैसा है तो रैंक तो उस पर डिपेंड करेगा, तो डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन को, बाकी को ऐसे रखें। A इनवर्स B को, A इनवर्स B को भी ऐसे रखते हैं, हैं? तो डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ Q बाय डिटरमिनेंट ऑफ B हो जाएगा, तो फाइनल बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ B बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, तो D ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से A इनवर्स B और Q, ओके, तो Q और Q ट्रांसपोज मिलके तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना, तुम इसको कंबाइन भी कर सकते हो अब, Q ट्रांसपोज इनटू Q, A इनवर्स इनटू B साथ ले सकते हो, रैंक है ना। अच्छा AB का मतलब एक थ्योरम होता है ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, ना ये थ्योरम है, ट्रेस ऑफ A इनटू B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इनटू A, ये होता है अगर AB BA डिफाइंड है तो लेकिन रैंक का जरूरी नहीं है, तो देखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सो एटलीस्ट ये समझ आ गया किसका मतलब ये तुम कहना चाह रहे हो, किसको मैं साथ रख लेता हूँ, ये तो I हो गया था ना, Q ट्रांसपोज इनटू Q क्या हो गया, I हो गया, बिकॉज इट इज ऑर्थोगोनल है तो ये I हो जाएगा। तो बचा तुम्हारे पास अब A इनवर्स B, सो A इनवर्स B, तो ये तो ऐसे Q आउट हो गया, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो जाएगा, Q तो है नहीं मेरे पास अब, तो या तो AB होगा या ABA इनवर्स होगा। तो क्या लग रहा है देख के आपको, D वाला था, ठीक है ना। सो ऐसे दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, तो देख लो किसका डिटर्मिनेंट है ना, वैसा होगा। तो यहाँ पे आ गया मतलब BA इनवर्स तुम बोल सकते हो, तो डिटर्मिनेंट हो भी ना लेकिन रैंक इक्वल रहेगा, वहां से लोगे ना। अच्छा आइगन वैल्यू बोला ना, सॉरी, तो आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस आर ऑलवेज सेम एज दोज ऑफ दिस। हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इसका और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू उसका सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिटरमिनेंट द प्रोडक्ट ऑफ, ये A बोल दिया इसलिए आउट हो गया क्योंकि इनवर्स हटा दिया, तो यही देख के ट्रू लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इसकी और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो भी ऑप्शन है सेम ही रहना चाहिए। डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो उससे भी कर सकते हो। ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू होती है, तो उससे भी सोच सकते थे हम कि भाई ट्रेस लोगे तो जैसे मैं ट्रेस पे तुम डिटरमिनेंट से स्टार्ट किए हैं, AP इन्वर्टिबल बोला है ना, हाँ तो इन्वर्टिबल ओ सो आइगन वैल्यू सेम नहीं रहेगा ना इनवर्स का, तो रैंक पे इफेक्ट शायद ना पड़ता कि A और इनवर्स का रैंक सेम हो सकता है अगर इन्वर्टिबल है तो, लेकिन आइगन वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी A और इनवर्स की। अब मैं ट्रेस से यही काम, तुमने डिटरमिनेंट से काम किया, यही काम मैं ट्रेस से करता, देखो जरा। सो क्या था, Q ट्रांसपोज A इनवर्स B टाइम Q, ठीक। तो मैंने एक रिजल्ट बताया कि ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल ट्रेस ऑफ B है, राइट। देखो ध्यान से, तो अभी तत्काल इसको A ले लो और इसको B ले लो, तो AB बराबर BA करूंगा तो क्या होगा, A इनवर्स BQ, और इसको इधर भेज दो, मैं ये यूज कर रहा हूं, ट्रेस ऑफ AB बराबर, ये थ्योरम है, ट्रेस ऑफ BA, तो जो तब नहीं बताया तो अब लिख लो, ये है, ये सब रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज करने हैं आपको। सो AB का ट्रेस और BA का ट्रेस इक्वल रहेगा फॉर मैट्रिक्स AB इफ डिफाइंड, प्रोडक्ट इज डिफाइंड। सो यहां से अब Q इनटू Q ट्रांसपोज कितना होता है, बोलो I। सो ये बचा A इनवर्स B, अब फिर से यही यूज करो एक बार फिर से, तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ हो गया, तो ऐसे दिख गया, तो ये डिटरमिनेंट के थ्रू गया
ट्रेस के थ्रू जाओ तब भी दिख जाएगा, और भी अप्रोच हो सकता है। दिस इज वन अप्रोच, अदर अप्रोच इज दिस, कुछ और भी अप्रोच हो सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला देखो सर, 51, ओके गुड। सो 51 ये कह रहा है कि एम बी है 3x3 नॉन जीरो, है ना, स्क्यू सिमेट्रिकल रियल मैट्रिसेस। ओके आइटम वाला भी एक आएगा सर, कोई भी ले सकता है। ठीक है, ट्राई करते हैं। सर स्क्यू सिमेट्रिक वो है ना, जिसमें हम मैट्रिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी ले सकते हैं। स्क्यू सिमेट्री में क्या थ्योरम होता है कि इसका जो आइगन वैल्यूज होंगी आइदर जीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। प्योरली में हाँ, लेकिन उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देख लेता हूँ। तो आपको पता है एक थ्योरम है, ये 12th क्लास का रिजल्ट है हालांकि, कि इस इफ यही दिख रहा ना, M इज 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, मैं 11th-12th में ये पढ़ाता हूँ, 11th-12th में भी थ्योरम है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ M इज, बोलो जी, -1 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ रूट ऑफ 4। अरे उल्लू, तुम ये बताओ स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो क्या आता है, वो फिर इवन आएगा। पेयर में आता है, यस। तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 3x3 के मैट्रिक्स है, तो इसके पास कितने आइगन वैल्यू होंगे, 3। तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक रियल हो सकता है। और रियल कौन सा होगा, रियल क्या होगा, 0 ही होगा। जीरो ही होगा, क्योंकि थ्योरम है इट हैज, अगर रियल नंबर हुआ तो वो जीरो ही होगा। एनीवे डायरेक्टली थ्योरम, 3x3 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा, नॉट इवन 3x3, एनी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट जीरो। ये रिजल्ट है, ठीक है। सो एनी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट जीरो, क्योंकि लॉजिक वही है कि रूट्स कम इन पेयर, तो कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयर में ही आएगा। तो जो ऑड डिग्री है तो एक तो रियल रूट आएगा और वो रियल रूट जीरो ही होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो जीरो ही हो जाएगी। ओके, तो अब बताओ ऑप्शन ए ट्रू या फॉल्स, i प्लस m का वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट, तो होगा। मतलब वो जीरो तो आ नहीं सकता कभी, मुझे लग रहा है ना। तो there exists a non-zero real matrix alpha such that a alpha plus m is non-invertible, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब क्वेश्चन पूछना था बोलिए बोलिए, हाँ सर। स्क्यू सिमेट्रिक का जो डिटरमिनेंट आता है वो हम एक बार पढ़े थे कि वो किसी किसी टाइम पे होल स्क्वायर आता है, वो तो वो कौन सा केस में आता है, वो एक बार बताएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक का होल स्क्वायर इवन के केस में, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे जीरो मैट्रिक्स इज द 1x1 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 0 0 a माइनस a, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए कितना आएगा, हाँ सर, ठीक है ना। 3x3 में स्क्यू सिमेट्रिक आएगा 0 0 0, लेट्स से a भी है यहाँ पे तो माइनस a माइनस b, c है यहाँ पे तो माइनस c, सो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, अगेन इट विल गिव यू 0। 4x4 का लोगे, सो अगेन सेम थिंग विल हैपन, तो होगा क्या, 4x4 विल हैव आइगन वैल्यूज लाइक दिस, b1 i कैप माइनस b1 i कैप, सॉरी कैप नहीं लगाना ना, क्या लिखो आयोटा ना, ये वेक्टर में चला गया मैं, मतलब मुझे a प्लस आयोटा भी लिखना है प्योरली इमेजिनरी, तो माइनस b1i प्लस b1i माइनस b2i प्लस b2i,
सो इट हैज दीज 4 आइगन वैल्यूज। यहां आप चेक करते तो क्या आता, सो आप चेक करो, अगर यहाँ पे आइगन वैल्यू वगैरह फाइंड करते तो क्या आंसर आता, ए आयोटा एंड माइनस ए आयोटा। चेक कीजिए, सो दीज आर 2 आइगन वैल्यूज देयर, आइगन वैल्यूज, क्योंकि ए एलिमेंट ले रखा है। यहाँ पे 4x4 का अगर आप कंसीडर करेंगे, सो इन 4x4 यू विल हैव दिस, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू मल्टीप्लाई ऑल, उल्लू 0 नहीं आएगा, ऑड ऑर्डर में 0 होता है, ये 4x4 है। इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, जो वो कह रहे थे अभी, ऑड ऑर्डर हैज 0, कितना आएगा जी, चेक करो, आपको दिख रहा है b1 इंटू b2 होल स्क्वायर आएगा, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, हाँ यस यस करेक्ट, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि जैसे आपने बताया, रिजल्ट ये निकल के आया कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट 0, ठीक। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स has determinant non-zero perfect square, ठीक। अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो है ना, तो मैं ऑड इवन ऑर्डर नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर 0 ले लिया तो मान लो 4x4 की 0 मैट्रिक्स है, फिर तो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाएगी, कोई 0 0 है तो वो तो 0 फिर हो जाएगा। मैं नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना, नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सर और एक बात बोल रहा था कि आपने जो मतलब a स्क्वायर या फिर a4 के लिए जो आइगन वैल्यू लिखा था वो आयोटा और माइनस आयोटा के टर्म्स में आ रहा है। यस, हाँ, तो जब भी हम 3 में लिखेंगे, मतलब 3 का ऑर्डर में जब लिखेंगे तो फिर एक रियल आएगा और दो जो कॉन्वेक्स आएगा वो ai और माइनस ai का टर्म में आएगा। यस, 0 ai माइनस ai, माइनस ai, ठीक है। मैं सीखा डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, मैं क्योंकि 0 मैट्रिक्स ले लेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो इसमें इन जनरल लिख देता हूँ। सो जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। सो इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या रहेगा देखो, तो इसका आंसर क्या है कि m का डिटरमिनेंट 0 है, इसीलिए m इन्वर्टिबल कह रहा है तो गलत कह रहा है। मैं इधर आ जाता हूँ वापस। सो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सी, ये गलत क्यों है, क्योंकि m का डिटरमिनेंट 0 आएगा, या बोलो m की आइगन वैल्यूज होगी उसमें एक 0 तो होगी ही। अब मुझे बताओ i प्लस m की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, i प्लस m के पास क्या कोई 0 आइगन वैल्यू आएगी, कंसीडर 3x3 है ना, ये 3x3 है। सो दिस विल हैव आइगन वैल्यू लाइक 0, जैसे उन्होंने बताया a आयोटा माइनस a आयोटा, फिर a इज सम रियल नंबर, ठीक, नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे समझो। अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं है तो नॉन जीरो लिख दिया ना, तो 0 मैट्रिक्स से 3x3 सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो a इज रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, सो a इज नॉन जीरो रियल नंबर, सो a कोई नॉन जीरो रियल, सो दिस हैज दिस टाइप ऑफ आइगन वैल्यूज। So 0 a iota minus a iota, these are the eigen values of m. So I'm asking you what is the eigen values of I plus m. I plus m की eigen value क्या आएगी, I plus m की eigen values क्या आएंगी, 1 आएगा, हाँ फिर 1 प्लस ai आएगा, राइट, और 1 माइनस, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करके देखो, कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये कह रहा है इन्वर्टिबल होगा, यस सही बात है। इसका डिटरमिनेंट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा नॉन जीरो नंबर मिलेगा, और ये ट्रू है तो सी इसीलिए गलत है। अगर आप इसकी आइगन वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, वैसे ही अल्फा टाइम आई है तो एक अल्फा आएगा,
क्योंकि m का तो 0 है ना। उसी तरीके से देख लो i अल्फा i का क्या आइगन वैल्यू अल्फा ही है, सो ये आ जाएगा अल्फा प्लस a आयोटा अल्फा माइनस a आयोटा। तो सेम लॉजिक से इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, तो ये तो इन्वर्टिबल होगा हमेशा। ये कह रहा है नॉट इन्वर्टिबल है, तो गलत बात कह रहा है, मतलब गलत स्टेटमेंट है ना। ये हमेशा इन्वर्टिबल होगा, ai प्लस m इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, सो ये इन्वर्टिबल तो होगा आपका। नेक्स्ट, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ m आर रियल। हाँ गलत है ये। हाँ, क्योंकि कह रहा है सारे रियल होंगे, जरूरी है। हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू आइदर जीरो और नॉन जीरो प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट, वन मिनट 54। हाँ चलो 54। अभी इसमें जो है ना ये ऑर्थोगोनल बोला है, जो हमने क्यू ली है वो एक्चुअली ऑर्थोगोनल ही है ना, एक्स ट्रांसपोज आई बन जाता है हमारा। आपको याद है एक्स एक्स ट्रांसपोज उस समय क्या आया था? मैं अभी डिस्कस कर रहा था एक्स एक्स ट्रांसपोज वाला। एक्स मेरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है ना, एक्स कॉलम है और एक्स ट्रांसपोज रो है। तो एक्स एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 m क्रॉस n क्यों n क्रॉस, मतलब यहाँ 3 है तो 3 क्रॉस 3 r क्यूब है ना ये, सो 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। एक्स एक्स ट्रांसपोज का मैंने बताया था रैंक क्या आएगा? सर इसमें ये मतलब क्या रहेगा सर, आई बनेगा, इसके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। एक मिनट, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल होता क्या है? चलो एक बार देख लेते हैं। देखो रैंक 1 है। हाँ, उसका हमने उसमें देखा था रैंक 1, तो एक्स एक्स ट्रांसपोज का रैंक 1 होगा। तो एक मिनट, तो हमसे क्या पूछ रहा था? देखो या m जो है ना वो ऑर्थोगोनल है, मतलब m इंटू m ट्रांसपोज इज इक्वल टू i। सो m मैट्रिक्स में कॉलम को x y z लिया इसने और ट्रांसपोज लेगा, तो ये जो कॉलम है ये कहाँ बदल जाएंगे? रो में आ जाएंगी, x y z ट्रांसपोज में, और ये i है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताइए? सर एक तो सर ये अच्छा यहाँ ट्रांसपोज आ जाएगा, एक मिनट, नहीं रुको रुको, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x अल्फा ट्रांसपोज प्लस y हाँ एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई वाई ट्रांसपोज जेड जेड ट्रांसपोज ना, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज लेंगे तो वहाँ भी ट्रांसपोज होगा ना। हाँ ट्रांसफर नंबर उस एम के अंदर एक भी कोड एक वेक्टर है। एक मिनट ध्यान से देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मेरा m अगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा है, ध्यान दो, x y z। तो जब तुम m का ट्रांसपोज लिखोगे तो ये क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसको कैसे लिखना चाहते हो? ये 1 4 7 तुम्हारा x था, 2 5 4 तुम्हारा y था, कॉलम वेक्टर z था। तो यहाँ इसको क्या लिखोगे तुम? अब क्या तुम इसको x लिख दोगे? एक्स ट्रांसपोज। हाँ ठीक है ना, y ट्रांसपोज z ट्रांसपोज। ठीक, वही मैंने वहां किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या एलिमेंट बनेगी? तो है ना, तो ये तो 1 क्रॉस इस टाइप का आ जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स आएगी, सो एक्स एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई वाई ट्रांसपोज प्लस जेड जेड ट्रांसपोज इज आई। ओके ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इंडिविजुअली सबकी रैंक 1 है ना। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन आई की रैंक की रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होती है? लेस देन इक्वल रैंक ए प्लस रैंक बी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब देखो मैं तुम्हें फिर से ट्रिक बताया, जब जनरल क्वेश्चन हो तो इतना कुछ करने में काफी टाइम जा रहा है और डिसाइड करना में डिफिकल्ट होगा। तो आप एंट्रेंस में क्या करोगे?
अगेन यू टेक एग्जाम्पल अप्रोच। तो आप अपनी मर्जी से XYZ अज्यूम कर दो जैसा इसने कहा है। ऑर्थोगोनल है ना, तो एक ऑर्थोगोनल बना लो। तो ऑर्थोगोनल पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी ये और इसमें यही पूछना था, जैसे अभी हमें पता चला ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं एग्जांपल लिया तो मुझे ये अपने कैसे डिसाइड करना है ये मतलब पॉइंट करना ये प्रैक्टिस करके आता है ना। है। जैसे अब जब चल रहे हो आप दीवार से टकरा गए, तो आपको ये समझ आया कि ये रास्ता गलत है, अब मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दीवार से टकराना पड़ेगा पहले जी। तो उस तरीके से है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगी कि हमने 10 रास्ते ट्राई किए और वो सारे गलत रास्ते निकले, तो मतलब 11वां रास्ता सही होगा, वो ढूंढ फिर 11वां रास्ता ढूंढेंगे हम। तो यही वाला तरीका क्वेश्चन करने के लिए है। तो प्रैक्टिस से आपको सो देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो वो नोटिस करोगे, तो किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से डॉट प्रोडक्ट लो, वो 0 देगा। कोई भी एक कॉलम दूसरे कॉलम से, है ना, और खुद का डॉट प्रोडक्ट खुद से लाओगे कि क्या है, ऑर्थोगोनल है। एक ऑर्थो नॉर्मल होता है, ऑर्थो नॉर्मल होता है तो फिर वो 1 देता है ना। हाँ, नॉर्म उसका जो है तो वो 1 देता, लेकिन ऑर्थोगोनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तुम इस तरह का, अगर मैं अच्छा मान लो अगर मैं m सबसे आसान सा एग्जाम्पल लूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मान लो ये एग्जाम्पल लूँ, कोई ऑप्शन आउट होगा? ये सारे सही हो जाएंगे। आउट हो जाएगा। तो Q जो मेरा बन के आएगा फिर, तो जो मेरा Q वहां दे रखा है XX ट्रांसपोज, सो Q मैट्रिक्स जो है एक्चुअली, है ना, Q मैट्रिक्स जो मेरा है वो बन जाएगा XX ट्रांसपोज। तो X तो मैंने लिया है 1 0 0 को, और ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक। और प्लस में यहाँ पे आप लिखोगे तो 0 1 0, ये Y है आपका, और ट्रांसपोज, अच्छा सॉरी पहले तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। सो मेरा जो Y है ना, ये M है, M को आपको रिलेट करना है उसके साथ, इसके साथ, ये मेरा M है। तो जब आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी, है ना, इसको हटा सकते हो, अब इसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, Y ट्रांसपोज, ठीक है। तो कितना आएगा ये, देख लो, एक एग्जांपल बन जाएगा ये। तो यहाँ 1 आ गया, बाकी सब 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा ऐड करेंगे तो, और ये बाकी सब 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देख लो ये आएगा ना, शायद चेक कर लो एक बारी। सही है गलत? अरे ये सही है ना, वेरीफाई करो तुम लोग। हाँ, तो यहाँ से क्या समझ आया कि A कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, नो। क्यों भाई? स्क्यू सिमेट्रिक में सारे डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा 0 होगा, तो ये गलत हो गया। ये आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 की है, ये भी बाहर हो गया, आइडेंटिटी तो आया नहीं। सेटिस्फाई करेगा क्यू स्क्वायर क्यू, आई थिंक ये सेटिस्फाई कर जाएगा नहीं। और QZ बराबर Z होगा, तो आओ जरा QZ ट्राई कर ले। हाँ, इसको खुद से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, यही आएगा खुद ही। यस यस, बोलना चाह रहा Q आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? यस। QZ, Z आपका क्या है? Z हमने जो बना रखा है 0 0 1, ये चेक करो कितना आएगा। सर हम एक बात बोले? जी जी सर, हम बोल रहा है कि वो जो आप पहले में लिखा था ना कि x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज प्लस z ट्रांसपोज इक्वल टू 1 जो लिखा था ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, उसमें से आप एक बार अगर क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें से x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज को q ले लेगा। करेक्ट। तो उसको 1 तो I माइनस z ट्रांसपोज हो जाएगा q का वैल्यू। करेक्ट करेक्ट। q स्क्वायर अगर निकालेगा और q के साथ इक्वल। यस, हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में यू हैव मेनी अप्रोचेस। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है, लाइक इफ यू सॉल्व यू मे सॉल्व बेटर देन मी, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हैं सोचना।
तो हर इंसान का अपना अप्रोच है, तो इफ यू ट्राई योर अप्रोच यू विल गेट है ना बेटर आंसर। जैसे मैं यहाँ अभी जैसे आपने सजेस्ट किया, दिस इज ऑल्सो गुड वे, सो आई हैव डन दिस वे। तो मैंने अभी एग्जांपल जो लिया ना उससे ए बी डी आउट हो गया, देखिए यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज क्यू, तो आई डिड क्यू इंटू जेड, जेड मेरा क्या था, दिस इज आर जेड, आई डिड क्यू इंटू जेड, 0 आ गया, ये कह रहा है जेड आएगा नहीं, तो इस एग्जांपल से आई टुक दिस एग्जांपल एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आई ए बी डी आउट, तो सी इज सही, दिस इज माय अप्रोच। सेकेंड अप्रोच यू सजेस्टेड, दिस इज आल्सो गुड। सो लाइक आप क्या करो जस्ट कि जैसे मैंने शुरू में किया था है ना कि आप हमने ये किया था भी कैलकुलेशन जस्ट, तो यहाँ से इन्होंने सजेस्ट किया, दिस इज फाइन, नाउ यू जस्ट फाइंड q square, so q square means q into q and this is means I minus z z transpose, so I minus z z transpose, now you just multiply it, you will find q only, yes। और सर d भी ऐसे ही चेक कर सकता है कि q को z से मल्टीप्लाई करा और फिर z नहीं आ रहा है उधर, यस यस हाँ यस, और ऐसे ही c गलत हो जाएगा क्योंकि c you are looking q is not identity, q is identity minus something ना, q is not identity, b option is saying q is identity matrix, oh sorry what is हाँ q is identity matrix, q is not identity, तो इसे आउट हो गया, इसी से आपको दिख नहीं गया this is not identity actually, right? and skew symmetric, so skew symmetric होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सो हाँ तो अच्छा यस, सो इससे आ जाएगा, तो इसको यूज करके थ्योरेटिकली, सो जनरली आई है ना आई स्किप थ्योरेटिकल वे, बट थ्योरेटिकल इट इज आल्सो फाइन। सो क्यू एक बार आ गया, सो आप ये चेक कर लो कि क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू आएगा, क्या हो गया, आइडेंटिटी नहीं है, वो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है दिस इज नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी माइनस समथिंग है, सो दिस इज रॉन्ग, ये आई थिंक नहीं आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, जस्ट इजी है, ट्रांसपोज इफ अप्लाई डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस, you apply transpose same, तो ये चेंज हो जाएगा एक्चुअली, it will not give you just negative, so ये आउट हो जाएगा, q square you find this, so yes इसको यूज करके चारों ऑप्शन सेटिस्फाई किया जा सकता है, दिस इज थ्योरेटिकल वे। मैंने एक एग्जांपल लिया m, मैंने एग्जांपल से चेक किया a b d आउट हो गया, दिस इज अदर वे, देयर आर मेनी डिफरेंट वे आल्सो, इफ यू थिंक देयर आर मेनी डिफरेंट वेज आल्सो, ठीक है, अच्छा है, हाँ तो आपने सही सोचा है, हाँ हाँ सर मैंने तो ये भी सोच रहा था, हाँ हाँ क्या है सर ये तो, यस यस, एग्जाम में क्या होता है सर, एग्जाम का सोच जब आप सोच लेते हो, हम लोग को नहीं सोच पाते, नहीं तो आप पूरे साल सोचो ना, जब पूरे साल सोचने की हैबिट डालोगे तो एग्जाम में भी आएगा आइडिया, सो प्रिपरेशन इज दिस ओनली ना, सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी हैव टू मेक द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, और वही हैबिट आपका एग्जाम में काम आएगा, सो द हैबिट यू आर यूजिंग एट होम विल हेल्प इन एग्जाम ओनली आल्सो। मैट्रिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एग्जाम पे सोचने के लिए, हो जाएगा, ट्राई करो, मैंने क्या सबसे आसान एग्जांपल लिया आईटीटी मैट्रिक्स, हो गया है ना इस तरह से। ओके नेक्स्ट, सर 55 का ऑप्शन सी बचेगा, अच्छा एक मिनट, तो 55 एक मिनट कहाँ गया, 54 ना अगला ये वाला, वही है ये ऑप्शन सी, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो बाकी सब आगे मुश्किल होता है, अच्छा सी नहीं समझ आया, ओके सी, so this is our question, so p has eigen values 1 1 1, so p inverse has eigen values sorry 1 1 2 ना, ओके तो यहाँ कितना आ गया, बोलो भाई, 1 क्या लिखूं, अरे दिस, ओके सो somehow I proved, अच्छा अगर मैं वापस ये फेल हो जाएगा ना, तो उसको मैंने हटा दिया, अच्छा ये दूसरा था, ठीक है देखो, तो मैंने क्या डिराइव किया था यहाँ पे कि ध्यान से देखो, ये मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज v, so this is v is 1 minus 1 2 transpose, this is the eigenvector corresponding to eigenvalue 1, so what I am saying
what is the PV is equal to what by definition of eigenvalue? क्या होगा PV? हाँ अर्कजीत, are you getting? सर PV इक्वल टू V होगा Yes. बिकॉज़ आइगनवैल्यू 1 है तो Right. So P इनवर्स V क्या होगा? P को इधर शिफ्ट कर दो राइट साइड, still it is V. Now see carefully. I am naming this X. So X is 2 minus 2 4 transpose. So can I write it 2V? Yes or no? यस सर Okay. So P inverse 2V is equal to 2V. So P inverse X is equal to X. Right. Now मैंने भी derive किया था somehow. I derived from the, so since it is said that Q is the मैंने क्या लिखा था कि Q is equal to adjoint of 2P. तो I divided both side by determinant of 2P. So determinant of 2P, adjoint of 2P. So this is 2 times P inverse. This is 1 by 2 P inverse. What? Q upon determinant 2P. What is determinant of 2P? So what is determinant of 2P? 2 cube determinant of P 8 times. Determinant P is the product of eigenvalues. So it is 2. So this is 16. Now 1 by 2 मतलब ये this is 16. So after simplification what do you get? Cross multiply it. Q is equal to 8 P inverse. Is it fine? Now you multiply both side by 8. So 8 P inverse 8 is 8x. This 8 P inverse is nothing but Q. So Q is equal to 8x. So what is the meaning of this line? You explain. Qx is equal to 8x means what? This is the definition that Q has eigenvalue 8 and the corresponding eigenvector is x. So that is the true statement. क्लियर है भाई? अर्कजीत और आदित्य? यस सर थैंक यू और सर डी वाला क्या कैली हैमिल्टन इक्विवेलेंट से होगा? यस उससे ट्राई कर सकते हैं. आई थिंक बाकी पार्ट ये सॉल्व कर चुका है. तो आदित्य इसको बस थर्ड ऑप्शन में डाउट था तो तुम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो आदित्य सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन भी. बाकी लोग ये देख लेंगे एटलीस्ट. अर्कजीत हाँ आप ट्राई करो, अगर डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा. इसको सी ऑप्शन में डाउट था, मैंने वो डिस्कस किया अभी. हाँ नेक्स्ट बताओ भाई आदित्य या जो भी कर रखे. कौन सा 73? ओके पेज 2. अच्छा इसमें नंबर लिखना भूल छोड़ दिया इसने. हाँ इसमें सिंगुलर स्टेटमेंट का ऑप्शन होगा और नीचे 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 और लास्ट ये 25 हाँ बताओ. ये दो ही क्वेश्चन है 23 पे, तो ये 3 क्वेश्चन है ना. बताओ कौन सा. हाँ वो इसका ऑर्थोगोनल ऑप्शन है. अच्छा ये वाला आई माइनस रैंक ये एम वाला है ना. ये एम भी एन क्रॉस है नॉन जीरो. अच्छा ठीक है. Let M be an n cross n non-zero skew symmetric matrix. ठीक है ना. So then the matrix, so में क्या होता है M जो है नॉन जीरो है, स्क्यू सिमेट्रिक है n क्रॉस n की. n अब n बताया नहीं इसने ऑड है कि इवन है ना. तो M जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, n क्रॉस n का. अब तुम्हारा मैट्रिक्स है I n माइनस m
in प्लस m इसका इनवर्स इज ऑलवेज। तो एक काम काहे नहीं करते, लेकिन मैं तो एंट्रेंस में कोशिश करता हूं एग्जांपल से कर लूं, है ना। तो ठीक है, क्या ये अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, मान लो इसको क्या करो तुम एक काम क्या नहीं करते, इसका नाम रख दो, चलो क्यू ले लेते हैं, ठीक। तो सिंगुलर के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सो क्या लगता है इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। तो मैं सीधा सीधा ज्यादा दिमाग में लगा के मैं क्या करूंगा, अगर मैं m क्रॉस m 1 क्रॉस 1 का ले लूं, मान लो इसने n फिक्स नहीं किया ना, तो अगर मैं 1 क्रॉस 1 का ले लूं फॉर एग्जांपल, तो मेरा ये q क्या बनेगा, तुम बताओ। बोलो भाई, आई बन जाएगा। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन आउट हो गया, आउट हो गए। अगर मैं m 2 क्रॉस 2 का बनाता हूं स्क्यू सिमेट्रिक, 0 -1 -0 -1 +1 0, ये है। इसके लिए जरा q डिसाइड करो, मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। बताओ मुझे क्या आएगा। ये होगा इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स लोगे तो क्या, डिटरमिनेंट तो 1 ही है, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट में डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। 1 2 -1 -1 चेक कर लो एक बारी। ये आया। अब ये तुम्हें नहीं लगता ये ऑप्शन कुछ को आउट कर देगा, बोला सिंगुलर, इसी का डिटरमिनेंट निकाल लो, 1 -1 +2 3, ऐसे पहला आउट इससे भी हो गया। सिमेट्रिक है ये, आउट हो गया। ऑर्थोगोनल है, Q इंटू Q ट्रांसपोज I आएगा, हाँ है ना, या Q स्क्वायर Q आएगा, सॉरी Q स्क्वायर क्या होगा, हैं? हाँ अच्छा 1 होगा, वो मैं गलत लिख दिया। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, नहीं उसमें नहीं, इसमें जो 1 -1 0 वहाँ 1 होना चाहिए। एक मिनट 1 -1 -10 वहाँ 1 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ अच्छा वो मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट। I में से मैं घटा रहा हूँ M को, अच्छा ओ अच्छा मैंने यहाँ गलत कर दिया क्या, वही एग्जाम्पल ठीक से बनाना। तो अब हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं गलती कर दिया थोड़ा। सो एक बार ध्यान से बताओ मुझे क्या होगा, I माइनस M बताओ क्या होगा। 1 1 यहाँ आएगा और 1 -1, अब सही है। और I प्लस M बताओ, 1 1 -1 1, इसका इनवर्स। तो अब इससे काम कर सकते हो तुम, जस्ट नेगेटिव अगर तुम बाहर कर लो, चलो ठीक है रहने दो। सो 1 1 -1 1, और इसका इनवर्स क्या, डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका 2। सो 1/2, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। देख लो एक बारी, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो 1/2 बाहर, अब ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 1 -1 0 1 -1 0, ओके।
तो कैलकुलेशन में पहले से चेक कर लो आप। तो ये आ गया। अब बताओ डिटरमिनेंट इसका क्या है, 0 तो है नहीं, तो इससे ये ऑप्शन आउट हो गया। सिमेट्रिक है ये नहीं, तो आउट हो गया। अब देख लो ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट। ऑर्थोगोनल का क्या डेफिनेशन है, Q इंटू P ट्रांसपोज I। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, तो चेक कर लो यहाँ से। अब चेक कर लो, कोई एक ही सही होगा मुझे लग रहा है। बताओ कौन सा सही है। हाँ तो ठीक हो गया ना। तो एंट्रेंस में यू ट्राई टू टेक एग्जांपल, लेकिन सुटेबल एग्जांपल। पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जांपल मैंने वो लिखा था राइट में, है ना, लेकिन वहां पे वो सुटेबल नहीं था क्योंकि वो मैं आइगन वेक्टर वाला कंडीशन नहीं ध्यान दिया था, बाद में ध्यान दिया। तो इसलिए क्वेश्चन कई बार होता है ध्यान से पढ़ना होता है। टाइम हो गया क्या, बच्चे फोन कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगले क्लास में आगे डाउट डिस्कस करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेंडिंग। हेलो हेलो यस सर, आपको कॉल से ज्वाइन करना चाहते हैं। जी 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 बताइए।